Hello students, welcome to my class. Today I will teach you lesson 17 Bismillah Khan the Shehnai Mistro. I just hope you have already heard about him. He was a great Indian musician. In this lesson we will explore some detailed information about him. So let's begin. What are the different kinds of hobbies people have? तरह तरह की हॉबीज़ कौन सी होती हैं लोगों की? डू यू थिंक दैट म्यूज़िक कैन वन सच हॉबी? म्यूज़िक भी ऐसी हॉबी हो सकती है. डू यू थिंक अ हॉबी कैन बिकम अ लाइफ लॉन्ग परस्यूट? क्या एक हॉबी पूरे जीवन का एक परस्यूट बन सकता है? सो लेट्स रीड द लेसन एंड एक्सप्लोर. Ustad Bismillah Khan was the undisputed jewel in the crown of Indian music. He had great love for his country. Unlike his peers, he did not go abroad for money and fame. He did not even leave his favorite city Banaras, where the notes of his Shehnai rumbled across the Kashi Vishwanath and Sankat Mochan temples and intermingled with the quiet water of the Ganga. Shehnai for the Mistro was a way of life. Had it not been for his godly devotion to music, Shehnai would have remained confined to ceremonies like marriages and cultural events. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was the great Shehnai Mistro. His contribution in Indian music is great. He has a great love for his country. वो बहुत बड़े देशभक्त थे, अपने देश से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो अपने और जो लोग थे जो फेमस हो जाते हैं वो अब्रॉड चले जाते हैं पैसा कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने देश को कभी नहीं छोड़ा. इवन वो अपनी सिटी बनारस को छोड़कर भी कहीं नहीं गए जहाँ से उन्होंने शहनाई बजाना शुरू किया था. बिस्मिल्लाह खान से पहले जो शहनाई थी इट वॉज कन्फाइंड टू सेरेमनीज लाइक मैरिजेस एंड कल्चरल इवेंट्स. शहनाई को मेनली लोग मैरिजेस में बजाते थे और ये उसी का इवेंट माना जाता था. Born in a poor family in Bihar on March 21, 1916, the Ustad was aware of his humble origins. This reflected in his behavior and his conduct towards others. For Bismillah Khan, the connection with music began at a very early age. His ancestors were court musicians in Damro in Bihar, and he was trained under his uncle, who was a Shehnai player at Kashi Vishwanath temple. His first award came at the age of 14 as the best performer at the All India Music Conference in Allahabad in 1913. On the first Independence Day, 15 August 1947, he played the Shehnai for Free India from the ramparts of Red Fort at the invitation of then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru. Awards and recognitions came thick and fast. तो यहाँ पर उनके बर्थ और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का बर्थ 1916 में हुआ था ऑन 21 मार्च. और कहाँ पर? बिहार में उनका बर्थ हुआ था. उन्होंने शहनाई बजाना अपने अंकल से सीखा जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में एक शहनाई प्लेयर थे. फर्स्ट अवार्ड उनको 14 ईयर्स की एज में मिला एज द बेस्ट परफॉर्मेंस एट द ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इलाहाबाद में. इंडिपेंडेंस का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था, जिस दिन इंडिपेंडेंस मिली थी, कब मिली थी हमें इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त 1947 को. तो उन्होंने फ्री इंडिया के लिए म्यूज़िक बजाया रेड फोर्ट पर. उनको इनविटेशन भेजा था प्राइम मिनिस्टर, जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने. उसके बाद अवार्ड्स और रिकॉग्निशन उनको मिलती गई. What marked Bismillah Khan from his famous contemporaries was his simplicity and his disregard for the riches that came with fame in the field of music.
Till the first end, he used a cycle rickshaw to travel around बनारस. वो जो और उनके कॉन्टेम्प्रेरीज थे, जो उनके टाइम के और म्यूजिशियंस थे, म्यूज़िक प्लेयर थे, उनसे एक चीज़ उनको अलग करती थी, उनकी सिंप्लिसिटी और मतलब उनको लालच नहीं था पैसे का, डिसरिगार्ड फॉर रिचेस. और इसी से उनकी म्यूज़िक में फेम बढ़ती गई, वो फेमस होते गए. स्टार्टिंग में वो रिक्शा पे टिल द वेरी एंड, जब तक उनकी ज़िंदगी रही, जब तक वो लास्ट तक बजाते रहे जो शहनाई, तो वो साइकिल रिक्शा में ट्रेवल करते रहे बनारस में. उन्होंने कभी भी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा था. बिस्मिल्लाह खान वॉन्ट जस्ट बी रिमेंबर्ड फॉर एलिवेटिंग द शहनाई फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट हर्ड ओनली इन weddings and Naubat Khanas to one that was appreciated in concert hall across the world. His life was a testimony of the plurality that is India. A practicing Muslim in his younger days, he would take a daily dip in Ganga after a wrestling bout of Bania Bagh Akhada. Every morning, Bismillah Khan would go riyaz at the Balaji temple on the bank of river. He personified real secularism. He was a practicing Muslim who offered namaz 5 times a day. Yet he had immense faith in Baba Vishwanath, Sankat Mochan, Hanuman and Ganga Maiya. तो इस पैराग्राफ में पता चलता है कि वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थे जो 5 टाइम्स नमाज अदा करते थे, लेकिन फिर भी वो गंगा मैया को, बाबा विश्वनाथ, संकट मोचन, हनुमान, इनमें भी उनका बहुत फेथ था और हमेशा वो इनको भी मानते थे. गंगा मैया में डुबकी लगाया करते थे और गंगा के प्योर वाटर को से वो हमेशा एक बाथ लिया करते थे रोज़ाना. उनका मेन कंट्रीब्यूशन ये था कि जो शहनाई वेडिंग्स में बजाई जाती थी, मेनली उसको वेडिंग इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, उसको उन्होंने पूरे वर्ल्ड में एक पहचान दिलाई. उन्होंने ये बताया कि शहनाई केवल मैरिजेस में बजाने के लिए नहीं है, बल्कि सारे वर्ल्ड में उसको फेमस किया. अ डिवोटी ऑफ नाथ ब्रह्मा एंड एन एम्बॉडीमेंट of Ganga Jamni Tehzeeb, he was shining symbol of Indian secularism. Shehnai Mistro Ustad was so liberal and great in his area of activities and he defied description. तो यहाँ से उनके सेकुलरिज्म का पता चलता है कि उनका जो वो डिवोटी थे नाथ ब्रह्मा के और गंगा जमनी तहजीब के वो सिंबल थे. सेक्युलरिटी उनकी लाइफ में थी. थ्रू आउट हिज लाइफ ही एबिडेड बाय द प्रिंसिपल दैट ऑल रिलीजन्स आर वन. ही वॉज अ डिवोटी ऑफ सरस्वती. ही वुड लेड द मुहर्रम प्रोसेसन एज वेल एज द that of the Ganga Puja in Banaras, playing the Shehnai while walking. He did not go abroad in search of greener pastures. तो सारी ज़िंदगी वो सरस्वती माता के भक्त थे, भक्त बने रहे. वो मुहर्रम प्रोसेशन को भी लीड करते थे और गंगा पूजा को भी उतनी ही ज़्यादा डिवोशन के साथ पार्टिसिपेट करते थे. प्लेइंग द शेहनाई वाइल वॉकिंग, जब भी वो वॉक करते इस तरह के जो प्रोसेसन निकलते थे तो शहनाई बजाते जाते थे. और वो अब्रॉड ग्रीनर पास्चर मतलब पैसे की चमक धमक और सारे लालच के लिए वो अब्रॉड कभी नहीं गए. उस्ताद वॉज प्लीज टू नो दैट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू होस्ट अ प्रोग्राम एट द इंडिया गेट टू पे tribute to the unsung heroes of the World War First and for world peace and communal harmony. The program was, however, cancelled, first because of his ill health and then because of his security threat. तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे वो उनको एक प्रोग्राम के लिए उनको इनवाइट किया गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो हीरोज़ थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए. वो बहुत खुश थे इसके लिए, लेकिन ये प्रोग्राम बाद में कैंसिल हो गया क्योंकि उनकी
इलनेस के कारण उनकी तबीयत खराब थी. A modest man for of few wants, he preferred to live a Spartan life. His room on the top floor of his house had only few things like a cot, a chair, an earthen pot for water, and his shehnai, which occupied the place of pride right beside the master's bed. उनकी ज़िंदगी बहुत ही सिंपल थी. वो बहुत सिंपल लाइफ स्टाइल को फॉलो करते थे. उनका जो रूम था उनके घर के टॉप फ्लोर पर, उसमें केवल कुछ ही चीज़ें थी, जैसे कि एक कॉट, एक चारपाई, चेयर, एक अर्थन पॉट, पानी पीने के लिए घड़ा और एक शहनाई, जिसका कि एक प्राइड प्लेस हुआ करता था. In 2001, Bismillah Khan became only the third classical musician to be awarded India's highest civilian honor, Bharat Ratna. 2001 में उनको भारत रत्न मिला, जो कि थर्ड क्लासिकल म्यूजिशियन थे वो, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था. This Indian legend and Shehnai Mistro died of cardiac arrest on Monday, 21st August 2006. He was 90 years की एज में उनकी डेथ हुई. उनकी डेथ जो कार्डिक अरेस्ट मतलब हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई थी 2006 में, जब वो 90 ईयर्स के थे. विथ हिज डेथ एन एरा हैज़ कम टू एन एंड. परहैप्स गॉड वांटेड दैट इंस्टेड ऑफ इंडिया गेट the notes of Shehnai should reverberate at the doors of heaven. He has given a message that no religion is greater than humanity. तो जब उनकी डेथ हुई तो एक एरा का एंड हुआ, एक युग का अंत हो गया. शायद ईश्वर ये चाहता था कि जो शहनाई के स्वर हैं वो स्वर्ग के द्वार पर, एट द डोर ऑफ हेवन, स्वर्ग के द्वार पर इसी तरह से शहनाई के जो सुर हैं वो गूंजें. और पूरी ज़िंदगी में जो शहनाई मिस्ट्रो थे उन्होंने ये मैसेज दिया कि कोई भी रिलीजन मानवता से बड़ा नहीं है. यही उनका मोटो था. तो इस लेसन में हमने बिस्मिल्लाह खान के बारे में बहुत सारी जानकारी ली. हाउ ग्रेट पर्सनैलिटी ही वॉज. सो स्टूडेंट, रीड द लेसन अगेन and write the question answer in your notebooks, which have already been sent through the PDF. Learn them, prepare them for examination, fill the exercise. Have a nice day. Bye.